सो देखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 तक आई थिंक करा दिया था हमने, जब परचेस किया और सेल्स में लिख दिया गया या सेल्स किया परचेस में ना। आज हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था कि हाउ टू solve the rectification of error while there is error of principle. तो एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है। Sir, can you please tell the page number? Page number 19.40 from DK Goel, if you having. Yes, yes, thank you, sir. Okay, so question number 5, rectify following errors. I'll be writing one by one question and solution. Okay, but you should write the question at one place and solution at one place. First question is, goods for rupees 5,500. Goods for rupees 5,500 were purchased from Mohan. Were purchased from Mohan sorry Mohan from modern traders on credit but no entry has yet been passed. Has yet been passed. So देखो, this is the very first what I had taught yesterday, error of omission. Isn't? यहाँ पे कह रहा है कि आपने मॉडर्न ट्रेडर्स से परचेस किया गुड्स, बट आपने इसका रिकॉर्ड ही अभी तक नहीं किया, है ना? तो क्या होना चाहिए? रितु बताइए, रितु, what entry should be passed here? Stand up and tell. Why, beta? You are not present yesterday. Then this means you had not solved the question from the textbook also. Why? What kind of error is this? Then you don't know how to pass the entry for the purchase of goods. You are buying it on cash. Then why you don't know? Be attentive and be serious towards your study. Sit down. So purchase account debit to modern traders, because it is clearly said कि purchase of goods from modern trader on credit, but no entry yet has been passed. So entry नहीं हुआ है, तो entry करेंगे हम लोग. Purchase account debit to modern traders account. Modern traders account for how much? 5,500. Done? तो कीजिए इसे आप लोग, एक
जगह at one place you will be writing the question and another place you will be solving the solution. ठीक है, passing the rectifying entry. Now second, purchase return for rupees 1,500 not recorded in the books. I think question number 5 is the same. Only error of omission is showing here. And you had solved only 3 questions. I hope that you will be solving much more than 5. So क्या होना चाहिए? Purchase return for rupees 1,500 not recorded in the books. So कौन बताएगा? इधर राहुल. Purchase return. Getting the question? Purchase return of rupees 1,500 not recorded in the books. Purchase return था जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ बुक में. तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा परचेज रिटर्न है. परचेज रिटर्न कैश में नहीं होता. किसी सप्लायर से अगर हमने परचेज किया तो उसको हम रिटर्न करेंगे. अगर सप्लायर का नाम नहीं दिया है, नेम इज नॉट गिवन, सो वी विल राइट द सप्लायर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट. पहले ये बताओ, चलो लेट इट बी. सबसे पहले बताओ परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे. अच्छा, परचेज को क्या करते हैं? अभी हमने परचेज किया तो परचेज को क्या किए हो? डेबिट. तो परचेज रिटर्न भी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा. इट्स वेरी सिंपल. सो सेकंड क्वेश्चन यू राइट परचेज रिटर्न purchase return of rupees 1,500 not recorded in book. ठीक है, बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो सिंपल सी चीज है कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और सप्लायर्स नाम दिया होता तो उस पर्सन का नाम लिखते हैं हम ना. तो सप्लायर्स अकाउंट और creditors you can write also because supplier is creditor na. So suppliers account debit to purchase return account by rupees 1,500. So think that all the question is same. Error of omission, only you have to pass the entry. If you know journal entry how to pass, you can solve this. Now third transaction is saying goods for rupees 2,000 sold to Geeta Traders on credit were entered in the sales book as rupees 200 only. This is error of commission. You have sold goods for rupees 2,000 to Geeta Traders on credit and you have recorded it. You have passed it, but by the less amount or wrong amount. So instead of 2,000, you have written 200 only. So we have to pass the same entry or reverse entry? Same entry. Okay. जब हम लोग लेस अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं तो हमको सेम एंट्री पास करना होता है विद द डिफरेंस ऑफ अमाउंट. सो ट्रांजैक्शन आई एम गोइंग टू राइट हियर. तो ट्रांजैक्शन थर्ड है, ये सेकंड ट्रांजैक्शन था क्वेश्चन नंबर 5 का. इसमें गुड्स फॉर रुपीज 2,000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन credit were entered in sales book. Rupees 200 only. Okay. So इसकी एंट्री आप लोग को सिंपल सी है, पता है कि गीता ट्रेडर्स
को हमने सेल किया था, तो जनरली सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए? गीता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, but it should be recorded by 2000, but earlier they have recorded by mistake by rupees 200 only. This means 1800 we have to record more, है ना? So entry would be Geeta Traders debit to sales account by rupees 1800 by rupees. So entry करिए आप लोग, गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट to sales account by how much? 1800. So ये 3 ट्रांजेक्शन आपके हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शन of the same question. The value of rupees 1800 returned by Sunil and company were included in stock, but no entry was passed in the books. Just I am writing here, goods of the value rupees 1800 returned by Sunil and company were included in stock, but no entry was passed in the books. तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास गुड्स रिटर्न आया कितने का? 1800 का। एंड हु हैड रिटर्न इट? सुनील एंड कंपनी। यानी गुड्स रिटर्न किया आपने, गुड्स उससे लेकर के स्टॉक में रख भी दिया, बट उसकी एंट्री कहीं बुक में नहीं हुआ। तो ये भी एरर ऑफ ओमिशन। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एरर ऑफ ओमिशन एक कमीशन वाला था इसके पहले का। सो ये भी क्या हो रहा है, हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो क्या कहलाएगा ये? सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसकी एंट्री ही नहीं किया हमने। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड टू सुनील एंड कंपनी 1800। क्लियर है? नेक्स्ट, फिफ्थ, goods purchased for rupees 900 entered in the purchase book rupees 9000. Goods purchased for rupees 900 were entered in purchase book rupees 9000.
तो आपने क्या किया, एंट्री सेम किया, बट यू हैव रिकॉर्डेड विद मोर अमाउंट। तो जब हम एक्सेस अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री क्या करना चाहिए, सेम या रिवर्स? रिवर्स। वेरी गुड। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर किससे खरीदा है, गुड्स परचेस नाम दिया है, नहीं दिया है ना? तो ये मानकर चलेंगे कि किसी सप्लायर से हमने उधार खरीदा है, कैश नहीं होगा, यहाँ कैश लिखा नहीं है, हालांकि कैश होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी, गुड्स परचेस फॉर ₹9,000, ठीक है। कैश भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नाम नहीं दिया है और आगे क्रेडिट भी नहीं लिखा है, इसमें कहीं पर भी क्रेडिट वर्ड नहीं आया, इसका मतलब ये कैश है। तो हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश एंड टू परचेजेस अकाउंट बाय रुपीज, ओके, क्योंकि हमने इतने रुपए से ज्यादा लिखा था, उसको रिवर्स कर दिया। लास्ट है, एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स was over cost by ₹100. So I am going to erase this. You have written. ज्यादा लिख दिया, ज्यादा शो कर दिया। कास्ट मीन्स शो करना, कास्टिंग। चलो मैं ऊपर ले ले रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे। इसका फिफ्थ वाला है an invoice for goods sold an invoice for goods sold rupees, goods sold to X है ना, rupees by ₹100, यानी कि आपने जो गुड सेल किया था एक्स को, उसमें ₹100 ज्यादा आप शो कर रहा है, मतलब ज्यादा हमने ऐड कर दिया है, ओवर कास्टिंग। तो कोई चीज ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। सो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, रिवर्स एंट्री करना चाहिए। तो एक्स को सेल किया था तो फर्स्ट टाइम एंट्री किया होगा हमने एक्स डेबिट टू सेल्स, तो अब रिवर्स करेंगे तो सेल्स डेबिट टू, यस, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ केवल इनवॉइस दिया होता और सोल्ड परचेस नहीं दिया होता ना, तो वो परचेस मानकर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहां तक कुछ नहीं था, कल ये सारा चीज पढ़ाया हुआ था, इससे ज्यादा ही कल मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करने का है। कल जो बताया था मैंने, परचेस किया और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, या सेल्स किया और परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सारा यही है टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम चेक करते हैं। सेवन भी लगभग वही है, तो 6 7 आप लोग होमवर्क लिख लो। उसके पहले का तो सारा नहीं कर रहा है, वो होमवर्क में होगा, प्रैक्टिकल 1 to 4 तक आप लोग का होमवर्क खुद से होना चाहिए, फिर मैंने कर रहा है अभी। 6 7 भी होमवर्क में रहेगा। 8, क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू राइट
क्वेश्चन नंबर 8। सो कह रहे हैं रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स, अ सेल ऑफ गुड्स टू राजाराम। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप क्वेश्चन बुक में है, आप मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप साथ में नोट कर सकते हो या सुन सकते हो। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स 8 है क्वेश्चन, नए बुक में या जो भी होगा पुराने बुक में देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 या 7 जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। हाँ, तो अ सेल ऑफ गुड्स टू राजाराम फॉर ₹2500 was passed through the purchase book। तो कल वाली वही बात हो गई, एंट्री इसमें आपने सेल किया राजाराम को और रिकॉर्ड कर दिया परचेस बुक में, तो क्या करना चाहिए, सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री करनी चाहिए थी, बट कर दिया है परचेस, तो परचेस वाले एंट्री को रिवर्स करेंगे और सेल्स वाले को लिखेंगे। तो कैसे करेंगे हम यहाँ, राजाराम को सेल किया है तो सही एंट्री हम डायरेक्टली कर रहे हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री, राजाराम डेबिट होना चाहिए। अगर हम सेल करेंगे तो क्या करना चाहिए, राजाराम डेबिट और टू सेल्स करना चाहिए। ठीक है, और उसने लिखा क्या है, परचेस डेबिट टू राजाराम, तो परचेस को भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कल जैसे बताया था हमने, दो एंट्री करके तीसरी रेक्टिफाइंग, आज डायरेक्टली रेक्टिफाइंग बता रहे हैं। इमेजिन कर लो कि क्या हुआ था, परचेस डेबिट किया रहा होगा तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे। अब राजाराम उसमें क्रेडिट रहा होगा तो राजाराम को डेबिट, तो दो बार राजाराम को तो डेबिट करेंगे नहीं, दोनों अमाउंट ऐड करके लिख देंगे, रॉन्ग प्लस राइट। कितने का था, 2500, 2500 टोटल हो जाएगा 5000। ठीक है, हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। सेकेंड देखो आप लोग, सैलरी ₹800, सैलरी ₹800 paid to Hari Babu was wrongly debited to his personal account। अब आपको पता है कि कभी भी नॉमिनल अकाउंट अगर होता है, लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, व्हाटएवर वी पे, we do not use the name of the person to whom we are making payment, है ना, we ignore the personal account। तो क्या करना चाहिए, अगर सैलरी पेड किया तो किसको डेबिट करना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट को, बट किसको वो डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट यानी हरि बाबू को कर दिया। तो हरि बाबू से तो कोई मतलब है ही नहीं, ऐसे तो एक संस्था में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो सबको सैलरी देते तो उसका नाम थोड़ी लिखेंगे। हाँ, नरेशन में लिख सकते हैं पेड सैलरी टू हरि बाबू, बट जनरल एंट्री में हरि बाबू को तो डेबिट नहीं करेंगे। हरि बाबू को डेबिट करने का मतलब वो हमारा डेटर हो जाएगा, है ना, इसलिए सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। तो यहां हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरि बाबू किया, तो हरि बाबू को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब सैलरी पे किया होगा, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को, जब रॉन्ग एंट्री किया होगा तो क्या कर दिया होगा, हरि बाबू डेबिट कर दिया होगा और टू कैश कर दिया होगा, और रॉन्ग सही एंट्री में क्या करना चाहिए हमको, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश करना चाहिए। तो यहाँ कैश कैश तो कॉमन है, क्रेडिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, बट करना क्या चाहिए, तो सैलरी को डेबिट जो हमने यहाँ कर दिया, और हरि बाबू बाय मिस्टेक रॉन्गली डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से था, यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर ₹1000 was entered in the purchase। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, फर्नीचर आपने मोहन से खरीदा, ठीक है, और रिकॉर्ड कर दिया परचेस बुक में, इसका मतलब परचेस अकाउंट के जैसे रिकॉर्ड कर दिया, है ना। तो क्या करना चाहिए हमको, फर्नीचर का खरीदा तो फर्नीचर डेबिट करना चाहिए ना, और लिख दिया था परचेस को, तो परचेस को क्या कर देंगे आप, ठीक, मोहन को कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मोहन चाहे हम फर्नीचर लिखे हो डेबिट या परचेस लिखे हो, हर हालत में मोहन तो क्रेडिट ही रहा होगा ना। अगर आप यहाँ सोचो, एज्यूम करो कि हम रॉन्गली क्या किया है, परचेस डेबिट टू मोहन कर दिया है, करना क्या चाहिए, फर्नीचर डेबिट टू मोहन, तो मोहन मोहन तो कैंसिल हो गया, क्रेडिट है, अमाउंट भी सेम है, अमाउंट में कोई मिस्टेक तो है नहीं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से है, 1000।
नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ में कह रहा है रुपीज 5000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे बिल्डिंग यानी एसेट की कैपेसिटी को बढ़ाता हो, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता हो, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना. एक्सटेंशन का मतलब बिल्डिंग में और कंस्ट्रक्शन करवाया गया. रिपेयर एक अलग चीज होता है और एक्सटेंशन अलग होता है. तो कह रहा है रुपीज 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग was debited to building repairs account. तो बिल्डिंग रिपेयर तो जाएगा नहीं, क्या होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होनी चाहिए. और किसको डेबिट कर दिया है? वो बिल्डिंग रिपेयर को. तो क्या करेंगे हम? यहाँ बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे. समझ में आ रहा है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स रिपेयर. ठीक है. बाय रुपीज हाउ मच? 5000. ठीक है. So now everybody is getting it. Any confusion you can ask? In this entry, is there any confusion? Because there are two types of expenditure. One is capital expenditure, other one is revenue expenditure. Revenue expenditure is transferred to the profit and loss account, na? And capital expenditure transferred to the balance sheet. Okay. So like purchase of furniture, so furniture is a capital expenditure, so furniture account should be debited. But instead of furniture, they had done purchase, so we have rectified it. Likewise, here we had paid 5000 rupees for the extension of building. Okay, but by mistake they have done building repair account debited. ना? So building repair तो revenue expenditure होता है और extension of building capital expenditure होता है. So हमें capital expenditure को दिखाना चाहिए और दिखाया क्या? वो revenue. तो revenue को माइनस करना है और capital को सामने लाना है. तो capital के लिए क्या करेंगे? building debit होगा और to building repairs account. Next लास्ट है इसका गुड्स रिटर्न बाय मनीराम रुपीज 1200 entered returned by Maniram. Returned by Maniram, what does it mean? Goods हमारे पास आ रहा है या गुड्स जा रहा है? हमारे पास आ रहा है. It should be returned inward, but they have recorded as outward by mistake, है ना? Return inward is known as sales return and return outward is known as purchase return. Okay, so यहाँ क्या करना चाहिए हमको? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना चाहिए और उससे क्या? ठीक है ना? क्या है? गुड्स रिटर्न बाय मनीराम 1200 पर एंटर इनटू द रिटर्न आउटवर्ड बुक. जस्ट रिवर्स कर दिया है. सो अब इसको सही करना है. इरेज करते हैं. तो हमें रिटर्न इनवर्ड यानी कि करना चाहिए return inward account debit, but by mistake they have done it return outward book. तो return outward को माइनस करना है. माइनस करने के लिए return outward को क्या करेंगे? क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड तो क्रेडिट होता है ना. रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो गलत लिखा है ना क्रेडिट में, तो उसको क्या करना चाहिए? इरेज करना है. इरेज करने के लिए परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे. तो रिटर्न आउटवर्ड डेबिट हो गया. अप टू मनीराम कितने रुपए का है? जितना ट्रांजैक्शन किया सब देखो रिजेंबल एक दूसरे से मिलता जुलता है. अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गए.
हो गया अब तक? एनी कंफ्यूजन? आप बच्चों सभी लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो। यू टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, students. So now I'm going to close. You will do the homework same as I have given.